Yes. Hi, here Binod is here with us. It is Binod sir. You can meet with him. So he is already NET qualified. 5 times NET qualified, 2 times GATE qualified, and 1 time KVS interview also he qualified. So I think his experience will help you how to prepare for this exam, and especially for computer science, definitely. So just we will listen to him, and let's see what he is sharing. So please, Vinod sir. Uh, Hi ma'am, good evening to all of you. Good evening. My name is Vinod Kumar. I have done MCA in 2016 and I have started preparation for 2017. First I started preparation GATE examination. By preparing for GATE examination, I did know about the UGC NET examination. Because syllabus of GATE examinations were very deep compared to UGC NET examination. Uh, that time I have appeared for GATE examination as well as for NET examination. But the first time GATE examination I didn't qualify, as well as NET examination I didn't qualify. Second time GATE examination I have qualified in 2018, and NET examination I couldn't able to qualify because of the first paper. Because my second paper was very good. That reason because I was preparing for GATE examination. And then 2017 I have started preparation for UGC NET examination very carefully, but I couldn't able to qualify 2 times continuously. Then 2019 in June I have qualified first time. Not so much marks, but definitely I have qualified the cutoff 2% more. Okay. 2019 December I have qualified NET, not JRF. 2020 during the Corona period I have qualified in, I think that time in November or December. November. Corona period. November. That time also qualified. I missed the JRF by 4 marks. Oh. 2021 I have qualified, I think in November 25 or 26 November I had an exam and my center was in Patna. That time I have lost again 4 marks for qualifying JRF. Oh, means it's very close. Definitely, ma'am, I was feeling very demotivated. Every time I feeling my parent was telling me, okay, please patience, definitely one day you'll qualify. This time मैंने क्या किया, मैंने कभी भी मैं इस टाइम में प्रिपरेशन नहीं किया. 4 to 5 मंथ कभी भी मैं नहीं किया. डेट एक्सटेंड करते गया, कुछ मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगी, तो मैंने कभी भी नहीं तैयारी किया. रैंडमली 5 दिन वीक का जो लास्ट का 5-7 डे था, मैंने अपना नोट्स को क्या किया, रिवाइज किया और उसको थोड़ा सा क्या किया कि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लिया, 2 ईयर का. और मैंने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गया. अगेन मेरा सेंटर पटना में ही था और बैठ गया. बैठने के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आई वुड एबल टू क्वालिफाई दिस टाइम, बट मैं क्वालिफाई कर गया. और 2019 में मैंने केवीएस एग्जाम का क्वालिफाई किया था, जो दिसंबर में हुआ था. मुझे अभी भी याद है, दिसंबर या जनवरी में था. हाँ, उसके बाद 2020 में बिहार स्टेट का एग्जाम हुआ, उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया. बट अभी गवर्नमेंट हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया है. 10+2 का स्टेट का एग्जाम हुआ था मैं, बिहार गवर्नमेंट का. तो मैंने अभी भी क्वालिफाई, उसका अभी तक वेट कर रहा हूँ कब काउंसलिंग कराए, कब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे, उसके लिए वेट कर रहा हूँ. और couldn't I have joined PhD because I have decided, this is my personal decision, I have decided when I qualify then I will take admission in PhD. Because I have 2 times qualified as PhD in JNU, but they have disqualified in interview. Why? Written examination I have qualified 2 times JNU, but they have disqualified in interview. Why?
2 times I qualified, ma'am. Excuse me, hello. हाँ, why they discontinued you? मतलब क्यों ऐसा क्यों किया? I don't know reason about it. One time I asked to the professor से मैंने पूछा, तो बोला कि आपको नॉलेज है बट रिसर्च एरिया में आप यू आर नॉट गुड फॉर नाउ। और इतना डेप्थ में वो पूछते हैं क्वेश्चन। कहने का मीनिंग, मैंने जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाकर ले आया था, इतना वो डेप्थ में पूछते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू आंसर देम, Okay. because net syllabus and their research is somehow different according to me, because मैंने मशीन लर्निंग पर मैंने बनाकर ले गया था। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ सिंपल प्रॉब्लम, कहने का मीनिंग मैंने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, बट दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, रिसर्च एरिया में कुछ क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन, मतलब वो डेप्थ कहने का मीनिंग, अगर इफ यू वांट टू get admission as a JNU or IIT, then one research area should be very good. Yeah. Then they will select it. Yeah. Actually, we have to be specific on that research area, and we have to be in depth, very knowledge, in depth knowledge have to be there. Then only they will choose. Otherwise, that is difficult actually. Yes, ma'am, definitely. इतना क्वेश्चन पूछने लगे ना कि मुझसे, कहने का मैं उसको क्वेश्चन, कहने का मीनिंग, वो सब्जेक्ट को मैं तो ज्यादा टच भी नहीं किया था। मैंने तो प्रिपेयर किया था यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो एक प्रॉब्लम है यूजीसी नेट क्वालिफाई होने के बाद भी, आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट आल्सो, even also after qualifying JRF also, some students are not able to get PhD because they don't have knowledge in that PhD. So for getting chance in PhD we have to prepare in different way. That is another different preparation actually. That's why this year I am not able to apply for JNU PhD. I have decided either I can qualify JRF, then I can join anywhere. Otherwise, I can join Bihar government state, because maybe the chance within 5 to 6 months. Within 5 to 6 months, maybe chance to join. Yeah, because you already qualified, so definitely I hope you will get it. चांस है मैडम, बट एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी तो यही बता रहा है 95%। अभी भी दिल्ली पटना में, कहने का मीनिंग, वो धरना प्रदर्शन चल रहा है, मुझे जल्दी ज्वाइनिंग करवाइए, क्योंकि 2020 में एग्जाम। दिस प्रॉब्लम इज मींस मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मींस आफ्टर क्वालिफाइंग स्टेट गवर्नमेंट प्रॉब्लम इज देयर एवरी डे। अब बहुत सारे स्टूडेंट है धरना धर रहे हैं। हां, वो इन वेस्ट बंगाल आल्सो दैट इज गोइंग ऑन, इन वेस्ट बंगाल आल्सो सेम प्रॉब्लम। 2020 का क्वालिफाई, 2021 में रिजल्ट आया और अभी तक आपका कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, यही हो रहा है। तो व्हाट इज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, बिकॉज यू क्वालिफाइड लॉट्स ऑफ एग्जाम, तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। मैम, मैंने यूजीसी नेट का प्रिपरेशन सेपरेट मैंने नहीं किया। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन ना, almost 80 to 90% syllabus of UGC NET and GATE exams are similar, according to me. 80 to 90%. Yeah, that is actually same. Yeah. Four subjects. For first paper, I have prepared for KBS Madhan. And some YouTube lecture, maybe some lecture I have prepared to you. I have prepared some lecture. I think research aptitude, some lecture I have prepared. Because research aptitude lecture available on your YouTube. Some research aptitude prefer, और उसी से मैंने प्रीवियस ईयर का मैंने प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस के दौरान से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया, कुछ मॉक टेस्ट देने लगा। तो जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था ना, तो मुझे आइडिया हो जाता कि नहीं, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। हाँ, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इससे मुझे आइडिया, ओह माय गॉड, लाइट ओके, इट्स ओके, यू कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन सही होता है, मतलब आपको सब्जेक्ट नॉलेज ज्यादा है, तो सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, व्हिच सब्जेक्ट यू प्रेफर, मींस यू फोकस्ड ऑन व्हिच सब्जेक्ट, व्हिच यूनिट, मींस यूनिट वाइज व्हिच यूनिट, कौन सा यूनिट मुझे हाँ, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, आई फील वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। TOC, compiler designer, data structure. Somehow I feel difficult in query language, SQL. Somehow I feel difficult. SQL,
somehow I feel difficult. Okay, okay. Normalization, it's okay for me, no problem. Hmm. And indexing, no problem, but somehow feel like difficult to solve what SQL problem. Okay. And digital logic, it's a good, is my favorite, ma'am. Digital logic. Yeah, yeah. हाँ, is my favorite because मैं पढ़ाता भी हूँ डिजिटल लॉजिक BCA स्टूडेंट को. Hmm. Sometimes I also take class for MCA student in as a guest faculty. some कोई यूनिवर्सिटी मुझे बोलता है कि हाँ आप आकर क्लास ले लीजिए, Hmm. तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर जाकर कभी कभी पढ़ा देता हूँ. और बाकी कौन सा मतलब बाकी सब्जेक्ट मतलब ये तो स्कोरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बाकी कुछ सब्जेक्ट आपने किया है? डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी yeah, but I am not so much interested, but on an average I can say that 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो श्योरली आई कैन स्कोर. तो स्कोरिंग एरिया आपको 100% कितना तो कौन नहीं. सा लगता है कि ये कौन सा एरिया स्कोरिंग है और एक कंसिस्टेंटली मतलब आपको most scoring area if you are preparing for UGC NET JRF, operating system, data structure algorithm, and DBMS, and digital logic, and TOC. Compiler design not so much important for your UGC NET exam, but it is important for GATE exam. Compiler design. In UGC NET compiler design, 1 or 2 questions are coming, not more than that. If you are ignoring the compiler designer, you can ignore it. And what we can say that discrete math. Discrete math definitely. Discrete math is definitely. If you are not good in discrete math, then you are not able to understand all computer science subject. Yeah. Because our computer science subject depend on discrete math. Yeah, that is. If you are good, then definitely 80 to 90% concept of computer science you can relate with discrete mathematics. And it is a scoring area because from discrete mathematics actually definitely 15 question, near about 15 question are coming. मोस्ट प्रोबेबली लॉजिक मैम, अगर इफ यू आर गुड इन लॉजिक ना तो उससे आप बहुत सा कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को कोरिलेट करके आप कर सकते हैं. लॉजिक अगर क्लियर है तो वही मैं भी बताती हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट का जो स्टार्टिंग होता है वो यूनिट वन डिस्क्रीट मैथ से ही वी आर स्टार्टिंग बिकॉज ऑलवेज आई एम टेलिंग इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ देन यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन कंप्यूटर साइंस. डेफिनेटली, बिकॉज़ आवर कंप्यूटर साइंस डिपेंड ऑन मैथमेटिक्स. Depend on mathematics. If you know mathematics and after that data structure, algorithm, programming, these are the core of computer science because core अगर computer ठीक नहीं है तो we cannot manage anything. That is correct. अभी भी रिसेंटली में मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं NBS का एग्जाम है ना नवोदय विद्यालय का. हाँ. तो उसको भी मैंने अप्लाई कर दिया हूँ, तो आज से मैं उसका सिलेबस देख रहा हूँ कि दिखते हैं 20 डे टाइम है. If I able to qualify, good. अच्छा है. हाँ, अभी भी एक्चुअली KVS, NVS, UGC NET, GATE मींस एनी एग्जाम ऑफ कंप्यूटर साइंस ये सारे कोर सब्जेक्ट के ऊपर ही है. एवरीथिंग इज इन दैट सेम सब्जेक्ट, सेम प्रिपरेशन. विद द सेम प्रिपरेशन एनीवन कैन क्रैक एवरी एग्जाम एक्चुअली. डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली. विद द सेम जैसे मैं KVS का एग्जाम क्रैक किया था, उसका मैं प्रिपेयर नहीं किया था बिकॉज दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर UGC NET एग्जाम. तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने किया, तो डायरेक्टली मैं एग्जाम में बैठ गया था. KVS के एग्जाम के लिए मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था. जब रिजल्ट आया तो क्वालिफाइड हुआ. 10 डे के बाद उन्होंने इंटरव्यू कॉल लेटर भेज दिया, बट इतना दूर भेज दिया कि मैं हैदराबाद में भेजा था. कंप्यूटर साइंस की हैदराबाद में ही भेजा था. तो वहां पर इंटरव्यू दिए. इंटरव्यू में मैंने थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक कर दिया था मैम. मुझे रियलाइज हुआ, मैंने पर्सनली अपने जहाँ कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर रेगुलर प्रोफेसर से मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि विनोद जी आपको ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था. मैं भी इसलिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दूं. मैंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो बना लिया था, बट वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने के बाद कुछ प्रोफेसर बोले मुझे कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले जाइए तो उसे इंटरव्यूअर पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया कि यू आर ऑलरेडी इन लेक्चरर इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन KVS? कि आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेक्चरर का है, इवन तो आप नेट क्वालिफाई हैं, तो आप KVS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो आपने क्या बताया था? आई हैव आंसर्ड देम बिकॉज
I was working there in what a contract basis. I'm not getting so much money. That's why I want to join. Maybe they feel what negative, क्योंकि अगर इसको अगर मान लो अगर किसी और में हो जाएगा तो हो सकता है छोड़ के चला जाए. हाँ. This I am feeling personally. Yeah. Actually, in interview we have to say always the positive thing. Means we should not say anything negative. In interview everything matters. कैसे आप response कर रहे हो, आपका attitude कैसा है, क्योंकि वो लोग बहुत attitude इंटरव्यू मतलब क्या है, attitude, personality. क्योंकि मुझे और 3 मिनट डेमो लिए कि whatever your favorite subject, please teach me 3 minutes. Go on the board, टेक ए मार्कर, स्टार्ट टीचिंग. तो टीचिंग मैंने अपने आप से सेटिस्फाई था. मैंने एक टॉपिक लिया और उसको एक्सप्लेन किया तो सेटिस्फाई थे. बट जो लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने जो दिया ना, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने दिया, तो मुझे ऐसा लगा, मेरे प्रिंसिपल बोले कि विनोद जी आपको नहीं ले जाना चाहिए था, बट ले गए. वो है कि आपको अगर हाँ ठीक है, मेरा टारगेट है केवीएस, आई वांट टू जॉइन केवीएस, दैट इज ओनली माय टारगेट एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू डू. सो इफ यू कैन से दैट, अगर आपने ये बता दिया तो वो लोगों को सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है ये बंदा हो जाएगा. मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था. कभी भी इंटरव्यू पे जाना है तो बोलना है यही मेरा टारगेट है, यही मेरा टारगेट है, यही मेरा ड्रीम है, तो इसलिए मैं इसी को करूँगा. तो ये एक बहुत बड़ा चीज है इंटरव्यू को, क्योंकि तो वो मिस्टेक मुझे भी, वी हैव टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर. वो मिस्टेक मुझे अभी भी रियलाइज होता है कि काफी अच्छी बेटर पोजीशन पर रहता, एक अच्छा है मेरे पास. तो रियलाइज करने से क्या है मैम, स्ट्रगल अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है. हाँ, स्ट्रगल तो होगा ही. और एज यू आर स्ट्रगलिंग तो डेफिनेटली यू विल गेट योर फ्रूट वेरी वेरी सून. तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं आप इतना स्ट्रगल करने के बाद आपको तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. और आप इतना कुछ क्वालिफाई भी कर लिए, तो इतना क्वालिफिकेशन के बाद कुछ तो मिल ही जाएगा. डेफिनेटली. आई थिंक हाँ, देखिए आप लोग का आशीर्वाद है. नहीं आशीर्वाद क्या है, बस बेस्ट विशेस कर सकती हूँ आपको. डेफिनेटली. सो यू आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव. वी कैन I can do the best wishes for you. And if you can tell me that how you are connected with Unify Study. Unify Study से आप connected कैसे हुआ? Hello, I am not getting you. Unify Study से आप कैसे connected हुआ, मतलब ये YouTube आपके YouTube. हाँ. 2000 I think पेंडेमिक मोमेंट में 2020 में आपका लेक्चर आया, तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर मैंने देखा. That time I was teaching online in college. Because that was the pandemic moment, and principal had instructed Mr. Vinod Kumar, you have to teach your home. Okay. Online था तो काफी बोर फील करता था. उसके बाद तो मैंने ऐसे सर्च करते करते यूनिफाइड आया, तो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने देखा था. तो कुछ वहां से मैंने देखा, ठीक अच्छा कंटेंट लगा, बट मैंने देखते गया, उसका कुछ नोट्स नहीं बनाया मैम, क्योंकि कुछ आइडिया मुझे था पहले से. बट रिसर्च एप्टीट्यूड का आपका कंटेंट बहुत अच्छा मुझे लगा. अच्छा. जो टाइप्स ऑफ रिसर्च आप पढ़ाए हैं, जो टाइप्स ऑफ, उससे डेफिनेटली है कि एवरी नेट एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता है. इसका टाइप्स ऑफ रिसर्च पर अगर कंट्रोल है, डेफिनेटली देखें 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आता है मैम उससे. तो टाइप्स रिसर्च आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मुझे क्लियर हुआ है. और कुछ लास्ट में मैंने इस एग्जाम में रिवीजन क्लासेस आप करवा रहे थे, 2 आवर 3 आवर का वीडियो जो दे रहे थे. तो मैं उसको एक बार गो थ्रू हो गया था कि मुझे फॉर्मूला और एप्लीकेशन माइंड में आ जाए. तो गो थ्रू हो गया था. उसके बाद एग्जाम में बैठा तो मैं एक्सपेक्ट तो नहीं किया कि मैं इस टाइम क्वालिफाई कर जाऊंगा, बट लकली आई क्वालिफाइड. ग्रेट. बट रियली मैम आई वांट टू टेल यू, मैं उतना हैप्पी तो नहीं हूँ. नहीं, आप जेआरएफ क्वालिफाई तो हो गया, कोई बात नहीं. जेआरएफ भी आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में. आपको बेस्ट विशेस, जेआरएफ आ जाए, आप पीएचडी स्टार्ट कीजिए और आपको जॉब भी लग जाए. आप जो जॉब के लिए वेट कर रहे हो, शायद ज़रूर आपको जल्दी से जॉब मिल जाएगा. तो ये तो ज़रूरी है डेफिनेटली.
थैंक यू। आपने इतना कुछ शेयर किया और आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने इतना ज़्यादा क्वालिफाई भी कर लिए, तो आपके साथ बात करके ये तो लगता है कि हाँ, कंप्यूटर साइंस में अगर किसी का इन डेप्थ नॉलेज है, इफ एनी वन हैव दैट डेप्थ नॉलेज, देन एनी वन कैन क्रैक एनी एग्जाम मल्टीपल टाइम. NET, GATE, Definitely. NET, GATE, KVS. So all these exam is actually same in one track only. So just we have to focus on the core subject. That is the main point, right? Yes, ma'am. So thank you, Vinod sir. So thanks for joining the session, and really it's a very good moment, proud Thank you, moment ma'am. to talk with You have given opportunity to share my views. Yeah, so definitely I will share Thank you, this ma'am. Thank you. with all the students so that they can also get some. It will be benefited for them because it's a motivation and it's a strategy. Thank you so much. मैं लास्ट हाँ हाँ बोलिए. लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ मैम, हम्म. those who are preparing for UGC NET exam, so please focus first paper more because that is a very simple paper. Yeah. Because That is- if you are not good in first paper, you might not able to get what JRF. You are able to qualify UGC NET exam as a lectureship, but somehow you feel what demotivated to qualify what JRF. So I request to all of you who are preparing for UGC NET exam for JRF, so please focus first paper. Yeah, At least you try to solve 35 question out of 50. definitely. Then definitely you are able to qualify JRF. That is a most important Because point. without first paper, if you are not most important, and that is just scoring. If you are preparing for 3-4 month first paper, I am assuring that you can get 30 plus questions definitely. Yeah, 60, If you are 3 year 60 to preparing 70 marks continuously. is easy. Actually, paper 1 to get 60 to 70 marks is actually easy. It's easy. Means if we are focusing on the concept and doing the previous year's question, after that nothing is required. Because from a same area question are coming, and without paper 1 actually we cannot crack. That you also saw, see that कि पेपर 1 आपने नहीं किए थे तो उसके लिए नहीं हुआ था पहले बार. तो पेपर 1 छोड़ के नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है. बट आई लाइक टू शेयर मैम, मैंने जब 5 को रिजल्ट आया, हाँ. तो 7 को मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, जैसे फेस्टिवल के लिए बंद था, तो मैंने गया तो एक प्रोफेसर मुझे पूछे जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, काफ़ी उनसे मुझे इंटरेक्टिव हुआ था, उनका नाम है अजय कुमार. तो उन्होंने पूछा कि विनोद जी क्या हुआ आपका फिर से. हमने मुस्कुराकर ही उनको आंसर दिया, सेम सर. अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम. अभी आपका एज है ना, हम लेकिन हाँ सर अभी 5 ईयर एज है मुझे, अभी मेरा 5 ईयर एज है फॉर JRF. ठीक है, कंटिन्यूअसली आप उसको प्रिपेयर करिए, आपका हो जाएगा. हाँ हो जाएगा. एवरी टाइम यू आर क्रैकिंग द नेक्स्ट टाइम आपको JRF आ जाएगा डेफिनेटली. हेलो. बट नॉट फॉर JRF सर. क्योंकि मैं भी कभी कभी फील करता हूँ कि ऑल द परमानेंट प्रोफेसर नाउ आई एम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. That's why I'm feeling somehow what nervous. That's when not I a become problem. a regular basis professor. That's not a problem. Now you are contractual basis, so definitely one day you will be the permanent, because lots of students are getting that permanent job. Definitely you will get also. So best wishes for you. It's really great moment to get all the information. Actually इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा होता है, फेलियर भी कैसे होते हैं, उसके बाद भी सक्सेस कैसे होते हैं, सारे एक्सपीरियंस आपसे मिला कि कहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इंटरव्यू पे भी क्या गलती नहीं करना है, वो भी ज़रूरी है. अगर आप JRF भी हो तो आप जिस टॉपिक पर आप रिसर्च प्रपोजल लेकर लेके जा रहे हो, एज ए लाइक यू कैन से सिनॉप्सिस, उससे रिलेटेड आप कम से कम 2-3 रिसर्च पेपर पढ़ के जाइए. बिकॉज अगर आप हायर इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हैं, जैसे JNU हुआ, BHU हुआ, IIT हुआ,
तो आप उससे रिलेटेड 2-3 रिसर्च पेपर जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं करके जाइए, देन ओनली यू कैन गेट एडमिशन देयर, अदरवाइज दैट JRF नेवर हेल्प यू देयर सर। एकदम एकदम ये इंटरव्यू पे पीएचडी पे इन करना है तो स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली यू कैन गेट एडमिशन, but if you want to get as a like a central university, as a like a what, JNU, BHU, IIT, NIT, they ask very depth knowledge about subject, very depth मैम। या मुझे JNU में 15 मिनट मुझे इंटरव्यू लिए थे, मैं शक हो गया था। एक बार तो मैंने ऑनलाइन दिया, फर्स्ट टाइम मैं ऑफलाइन गया था, पेंडिंग में मैंने ऑनलाइन दिया था इंटरव्यू, और फर्स्ट टाइम मैंने ऑफलाइन गया था, JNU गया था डायरेक्ट, तो वहां पर मैंने देखा। हाँ, पीएचडी के लिए बहुत इन डेप्थ चार्ज लगता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट है मेरा जो आईआईटी पे एनआईटी पे मिला उनको, लेकिन उनको एक ही एक्सपीरियंस है कि हाँ इन डेप्थ कहाँ पे करना है रिसर्च, और वो इन डेप्थ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। Okay, so thank you, thanks a lot so much for your experience, and it's really great that हाँ आपने आपका पावर भी कट हो गया लेकिन आप फिर से कंटिन्यू कर रहे, ये रियली ग्रेट है। थैंक यू। रूरल एरिया में प्रॉब्लम होती हाँ, है मैम। रूरल एरिया में मुझे पता है प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं भी रूरल एरिया से हूँ। मेरा जो विलेज है वो एकदम रूरल एरिया में है, मैं जहाँ पे बड़ी हुई, मेरा जो होम है एक्चुअली, तो वो एकदम रूरल एरिया है, तो मुझे पता है उसमें कितना प्रॉब्लम होता है। और आप इतना रूरल एरिया से आप इतना ट्राई कर रहे हो, तो बेस्ट विशेस, भगवान आपका एकदम सब कुछ मिल जाए, आपका बहुत जल्दी ही आप क्वालिफाई भी हो जाए। क्वालिफाई तो हो ही गए, मतलब आपको जॉब मिल जाए, आपका जो भी विश है वो पूरा हो जाए, बस वही है विश हमारे तरफ से। थैंक ओके यू, मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।